السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نازی جرمنی کے چند کیریکٹرز کے ساتھ جن میں آپ کو موجودہ بھارتی قیادت کی جھلک دکھائی دے گی. تو ملتے ہیں نریندر مودی کے ساتھ. ہیل ہٹلر، ہیل ہٹلر. اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت. لو بھائی جی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا جی، آپ کا نام مودی کیوں ہے؟ نہ مودی ہے نہ ہٹلر ہے، مودی. یہ کیا نام ہے؟ اصل تو میرا نام انہوں نے بگاڑیا ہے. یعنی یہ مودی جو ہے. ہاں جی، عجیب کسی نے غصے سے نہیں آخی دوندا. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے انہیں مودی کہتے ہوئے. کسی نے کہو میں کہی جانا. کسی بس اچھا، بچپن میں آپ کی ایک چھیڑ تھی فیکو. فیکو کا مطلب ہے شوخا. آپ شروع سے ہی شوخے تھے. اچھا، پہلی گل تو یہ کہ یہ گل تو لبھی کتوں میرا نام دی. مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ وردی کتوں لبھی ہے؟ یہ میری اپنی ہن سوائی ہے. ویسے شرم نہیں آتی آپ اپنے آپ کو ہٹلر کے ساتھ ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں؟ وہ میں نہیں چاہتا، میں نے زبردستی کیتا ہے. آپ کی حرکتوں نے کیا ہے. ویسے دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، دونوں الیکٹڈ لیڈرز ہیں. ایک چیز مشترک ہے، ان میں کم از کم 1 درجن چیزیں مشترک ہیں. آر ایس ایس اور نازی پارٹی کو دیکھ لیں. یہ کیا ہے؟ سر یہ نازی ہے یا نازی ہے؟ نازی لکھا جاتا ہے، بولا نازی جاتا ہے. جیسے پیزا، پیزا اور پیزا. اب جرمن، اٹالین، فرینچ اور پھر ساتھ ڈچ بھی، ان کی لینگویج میں کافی مماثلت ملتی ہے مختلف جگہوں پہ. اچھا جی، سب سے بڑی مماثلت ان دونوں میں آر ایس ایس اور نازی پارٹی میں سپریمیسی، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات شو کرنا اور دوسرے کو حقیر جاننا. یہ محاورہ مجھے لگتا ہے بنا ان لوگوں سے ٹو لک ڈاؤن آن ادرس. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جرمن ریس جو ہے نا، جرمنز، ان کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے، باقی سب کے سب مزارعین ہیں. اور یہی بات سوچتے تھے ایجپشنز بھی. بابل و نینوا کی سویلائزیشنز بھی دیکھ لیں، تاتاری بھی یہی سوچتے تھے. آج کا تاتار جو ہے وہ بھی یہی سوچتا ہے. لیکن پھر تاریخ کے قبرستان ان کے ساتھ بھرے پڑے. وقت بدلتا ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا. اب دیکھیے، منبع تو ان کا آرینز ہے نا. جی جی جی. آرینز جب یہاں آئے ان کا بھی رویہ یہی تھا کہ بھی اختیار صرف اور صرف ہمارے پاس. تم جو لوکلز ہو، جو کم تر ذاتوں کے لوگ ہو، مطلب کچھ بڑے ذمہ دار ہو، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرو. یعنی ہمیں فائنینس کرتے رہو، تمہاری بچت اسی میں، اور کچھ نہیں مانگنا ہم سے. دوستی رکھیں گے، تمہارے ساتھ تعلق رکھیں گے، الیکشن کا حق دیں گے، شادیاں انٹرمنگلنگ اس کی اجازت دیں گے، ہماری عبادت گاہوں میں تم آؤ گے، ہم تمہاری میں جائیں گے، لیکن اقتدار میں شرکت نہیں کرو. پھر یہ جو کھشتریز تھے، ویش تھے، اور اینڈ میں شودرز بیچاروں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم اپنی عبادت گاہیں بھی نہیں بنا سکتے. ان کی ایٹ بیسٹ ڈیوٹی جوتیاں سیدھی کرنے میں، دیگیں شیگیں پرساد وغیرہ ارینج کرنے میں، جانوروں کی نگہداشت، یہ ان کا کام ہوا کرتا تھا. پھر تم اپنا گھر نہیں بنا سکتے. یعنی کیسا ظلم. اور ہمارے ہاں بھی وہ لوگ موجود ہیں آج بھی. یہ پکھی واس کون ہے؟ آئے یہ اوڈ، یہ ٹپری واس، یہ جپسیز کون ہیں؟ یہ وہی ہیں. اور انہیں کہا گیا کہ تم نے اگر گھر بنانا ہی ہے تو یاد رکھو ایسا جسے طے کر کے خچر پر لادا جا سکے. تو خیموں میں رہ رہے ہیں اس وقت سے لے کر آج، اور وہ ان کا کلچر بن گیا ہے. کسی نے ریزیلینس تک نہیں شو کی. یعنی عادت پڑ گئی ہے، رہا ہوئے تو پرندے اڑان بھول گئے. اور یہ ساری باتیں بڑی دلچسپ کتاب ہے یحییٰ امجد کی. آپ اس میں پڑھیے تاریخ پاکستان پارٹ 1، 2 حصے، بہت شاندار کتاب ہے. میں ہمیشہ اس کا بڑا تذکرہ کرتا ہوں، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہی رویہ ہمارے ہٹلر صاحب کا تھا. جو کچھ انہوں نے جیوز کے ساتھ کیا ہولوکاسٹ کے نام پہ، وہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ موصوف کر رہے ہیں. یہ جو منی لینڈرز اور سود کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے، اور اس نے ان کا بغور دیکھ کے اس نے کہا دنیا میں جو فساد ہے اس کی جڑ یہ ہے. تو اس نے تو ایک انتقامی نقطہ نظر سے یہ کام کیا نا. یہ اس کی وجہ ان کی سود نہیں تھی، اس کی وجہ اس کی ذاتی دلچسپی تھی جیوز میں. اس کی ذرا پڑھے نا، بایوگرافی پڑھے. بچپن سے ہی اس کے کیا معاملات کہتے ہیں ہمیشہ ہم جب فارن پالیسی میں پڑھا کرتے تھے ویریبلز، مختلف ویریبلز، تو اس میں ایک ایڈیوسنکریٹک ویریبل
बड़ा मशहूर वेरिएबल। इनकी इडियोसिंक्रेसी और हिटलर की इडियोसिंक्रेसी, मुसोलिनी की इडियोसिंक्रेसी, स्टालिन की इडियोसिंक्रेसी आपको बहुत अकदार मुश्तरक नजर आएंगे। हेलो चंगी तरह पढ़ के आया कर, तेन नहीं पता किहदे नाल मत्था तेरा लगा। अच्छा ये क्या अंदाज अपनाया हुआ है ये अंदाज की मतलब आप जहाँ बैठते हैं कुछ थोड़ा सा ख्याल रखा करें ना, आप जर्नल लगते हैं ना बख्शी लगते असल से मैं जनरल बख्शी ਨੂੰ बकवास करने वास्ते रखा हुआ है। और सर रो भी पड़ता है, छोटी छोटी बात पर रो पड़ता है। हैं और मैं इसे इंडियन जर्नलों का मुस्तफा कमाल कहता हूँ। खामखा रोने लग जाता है। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा आप भी बैठे हैं ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ क्या ਅਮਰੀਕਾ ह्यूस्टन? ਆਹਾ अच्छा जी 40,000 का मजमा किया मौसूफ ने, इमरान ने 30,000 का, पाकिस्तानीज हैं टोटल 4.5 लाख, ये मिलियंस में है जी। 3.5-4 मिलियन इंडियंस की मौजूदगी में ये कम से कम 3 लाख का मजमा होना चाहिए। सर तकरीबन 10,000 लोगों ने एहतजाज भी किया है, हाँ जी। उसको भी शामिल किया जाना अच्छा चाहिए। एहतजाज वालों को भी शामिल करें तब 40 बनते हैं। ਓਏ ਹੂਦੀ यार इसका नाम कितना है, हुदी ना कहा करो यार। यार हुदी ना नहीं, मेरा मुद्दी ना है। तो हमें हुदी क्यों कहकर आपने मुतारिफ कराया था? असल तो मैं दिल्लियों नहीं आया, मैं यहाँ डमी म्यूजियम तू। डमी म्यूजियम है ना कराई है। डमी म्यूजियम में आपका जो कैटलॉग है उसे नरेंद्र हुदी कहते हैं और हिटलर को गालिबन मिटलर कहते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਈ हाँ जी, ਉਦੋਂ ਕੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। इसलिए कि कश्मीर के मसले को तो हमने सुला दिया था। गहरी नींद हुदी साहब तुसी मेरी बकवास ना कर वैसे कोई ना लेने वाला है यार ना देखें, मैं आपका नाम ले रहा हूं ना, उस वक्त आप माइंड नहीं करते। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। नहीं इंडिया भी सारा इनको गालियां निकाल रहा ਉਹ है। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ये दरमियान में एक इंतहाई अहम कैरेक्टर बैठा है, अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ये नेजा साहब कौन है जी? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ੀਰ ਹਾਂ। हिटलर मोदी ममासलतें जब आप तलाश करते हैं उसमें से एक ये भी कि दोनों ने प्रोपेगेंडा मशीन को खूब इस्तेमाल किया। ये उस दौर का गोएबल्स और आज का मुशीर है। ये अजीत दोवल है यानी। ये दवल के करीब करीब है, क्योंकि दवल से ज्यादा माकूल आदमी है। ए जनरल बख्शी नु डेंगी ते नहीं होया। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तुम जनरल बख्शी हो या बख्शी वजीर हो? ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਪਾਗਲ ਪਠਾਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। मसला कश्मीर सिर्फ वही नहीं बता रहा, पूरा पाकिस्तान बता रहा है, हर इदारा बता रहा है, मीडिया बता रहा है, अवाम बता रहे हैं। और बात बीच में रह गई जब मसला कश्मीर का तस्करा हो रहा था कि हमारे हुक्मरानों ने तो इसको गहरी नींद सुला दिया था। जी। ये तो बुरहान मुजफ्फर वानी जैसों ने इसको रीजोविनेट किया है, री इनकारनेट किया है। बिल्कुल। इसकी अहयाए नौ जो हुई है वो उन शहीदों के हाथों हुई है, और वो खून है जो आज रंग ला रहा है। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਿਦਾ ਮਾਰ ਵੱਟੇ, ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਕਾਣੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। वो तो कानी अल्लाह की तरफ से होगी, तुमने तो पैलेट गन्स के साथ काना किया। देखें 1 लाख लोग सर शहीद किए गए हैं। फिर इनका एक स्लोगन बेटर डेज विल कम, और मौसूफ कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। हाँ जी। तो कहां से लिया ये स्लोगन हुदी साहब? अच्छा ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਖਚ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। यानी हिटलर ने। हाँ जी। अच्छा अगर आप सचमुच इतने बहादुर हैं तो फिर कर्फ्यू क्यों लगाए जा रहे हैं? और सर कर्फ्यू लाना बड़ा जरूरी है, ये तो बड़ा फसाद हुआ है, मुसलमानों गुस्सा ही बड़ा चढ़ा हुआ है। अंदर से डरे हुए हो? डरना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर कर्फ्यू तूल पकड़ गया जैसा कि पकड़ रहा है, हाँ जी। तो गुस्सा उतर जाएगा, ये तो बढ़ता जाएगा, स्नोबॉल होता जाएगा। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਤਲੇ ਇਹਦੇ ਸੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਕੋਈ? इन तो पुतला समझ के सच्ची मुच्ची कोई आग लाने लगे से। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा जनरल बख्शी की मूंछें नहीं, जबान भी बहुत लंबी है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, 2 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਚਵਿੰਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਰਗਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਿਆ। दोनों जगह मार पड़ी तुम्हें। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟੇ। ਕਾਰਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀ, ਕਸਮੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦਾ। अच्छा जी क्वेश्चन जी। सर क्या अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल कराने में नाकाम हो चुकी है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा जब सिंसियरली कोई मसला हल करवाना चाहती है तो करवा लेती है। मशरकी तैमूर की तरह, साउथ सूडान की तरह। जी जी जी। और इमरान खान ने क्या खूब कहा है कि अगर इसी तरह 80 लाख अमरीकी नहीं बल्कि सिर्फ 8 अमरीकियों को बंद किया जाता तो क्या इंटरनेशनल मीडिया और यूएन ऐसे खामोश रहते? ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਮਨ। अच्छा जनरल बख्शी साहब ये बताइए कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है
उस पर कोई ज़मीर नाम की चीज़ कभी मलामत नहीं करते। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये गलत इत्तलात पहुंच रही हैं। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਟਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अब बख्शी दे मामे ਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਟਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ। ਗੋਇਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੂਟ ਮੱਥਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। वैसे असली गोइबल तो लंगड़ा था, आप कैसे हैं? ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਗੜਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਆ ਭਾਜੀ। अच्छा सर, ये हुदी साहब के ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। हाँ, और इंतहाई बकवास फिल्म थी। वो क्या नाम था उसका? मोदी। मोदी, ओए हो। इलेक्शंस के दिनों में इन्होंने बाल नरेंद्र कॉमिक्स भी निकाले थे, ये जिसमें ये अपने आप को बड़ा हीरो दिखाते हैं, हीरो भी है अपनी तरफ से। डिस्कवरी टीवी के लिए मैन वर्सेस वाइल्ड भी की थी इन्होंने। जी ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਅਗਲਾ। बुचर ऑफ गुजरात के बाद कौन सा टाइटल है जो हुदी साहब आप पसंद करेंगे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਖੱਚਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਇਹ ਤੇ ਗੋਬਲ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਕਰਨੇ, ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। इजाजत इजाजत। ਲਓ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। बिस्मिल्लाह। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁੱਲ ਮੋਏ ਲੱਖਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਝੇ ਮਤਾਂ ਕਰੀ ਇਤਬਾਰ, ਐਵੇਂ ਕੱਚੀ ਗੰਢ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਹੈ इसमें आपका क्या कमाल ਹੈ ਵੇਖਿਆ। यार? वो यूसुफी साहब का एक कैरेक्टर याद आता है। कहते हैं हमारे हमसाए में एक मुर्गी खाना था, उसका मालिक रोजाना आके अंडे का साइज दिखाया करता और यूं सीना फुलाता गोया उसकी पैदाइश में इनका भी कोई हाथ है। कोई अपना किस्सा ही सुना दो, मरी बांदरी का मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। इनमें से किसे कह रही हो? ਮਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਰ। ये उसका वजीर इत्तलात था, सारी मीडिया पॉलिसी मीडिया मशीन को ये रन करता था। इस वक्त जिस तरह आपके हैं ना हाँ जी, बिकाऊ 500-700 वहाँ पर आपने रखे जिनको रोजाना आप फीड करते हैं, ये अकेला सबको आगे लगाए हुए थे। ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। उस ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। उस दौर में कोई नहीं वंडता शंडता था, दहशत इतनी थी, अब खिलाना पड़ता है। लेकिन इंडिया सारा खुश है ना। सारा इंडिया खुश है। हाँ जी, सर, इंडिया में बेरोजगारी जो है वो 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। महंगाई कहाँ पहुंच गई है, इकोनॉमी का ओवरऑल सत्यानाश कर रहे हैं ये साहब। सर, इंडिया से अगर बॉलीवुड निकाल देना तो कुछ भी नहीं होगा। इवन बॉलीवुड ने एक अरसा हुआ क्या किया, क्या कमाल किया। जिस तरह हर 16 घंटे बाद एक फिल्म रोल आउट होती थी या होती है, तो उसमें कितनी फिल्में जिन्होंने ऑस्कर जीते हैं, कितनी फिल्मों जिन्होंने तहलका मचा दिया। दंगल के बाद मुझे एक फिल्म नहीं याद कि जो कुछ चज की ढंग की फिल्म आई हो। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵੇਖੋ। हर थर्ड क्लास फिल्म, ऐसी फिल्म जो आपको मुफ्त लेकर जाए, दिल चाहे कि आप उसे भी सजाए मौत देते। ਮੈਂ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। इससे भी माड़ी थी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। आपको कौन देखता है? उसी पैटर्न पे एक फिल्म बनी थी बड़ी शानदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, गुजरात का बैकड्रॉप ये है फिल्म। आपकी फिल्म को कौन पूछता है? परेश रावल ने वो रोल किया था। ਅਸਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਮਾਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਮਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਛੱਤ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ। बाकी उसने आप पे एक फिल्म बनाई तो थी, भूत। ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਸਾਂ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। उसकी तो खैर वजूहात कुछ और थी। अब ना ही खोलें ये चैप्टर तारीख का। ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਲੜੀ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਜੰਗਾਂ ਚਵਿੰਡਾ ਤੇ ਉਥੇ ਕਾਰਗਲ ਉੱਤੇ, ਉਥੇ ਜੰਗ ਤੇ ਬਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਕਾਰਗਲ ਉੱਤੇ अच्छा, ਇੰਜ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ। ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਤਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। जनरल मुशर्रफ गाते बहुत अच्छा नहीं थे, बाजा और तबला बजा लेते हैं, डांस वगैरह कर लेते डांस खुद नहीं करते थे। उनकी वालदा बहुत अच्छा क्लासिकल डांस जानती थी। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਬਗੈਰਾ ਕਥਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਗੋਇਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਡਾਂਸਰ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਿਰਫ ਸਤਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ? ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੀਪਿਕਾ, ਕਤਰੀਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਦ ਉਹਦਾ। ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੌਜ 'ਚੋਂ? ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। नहीं, दीपिका ही काफी है। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ।
ਟਾਈਮ बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर। ਐਕਟਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਐਲਬਮ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खवातीन हज़रात, संजीदा गुफ्तगू के हवाले से आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ हम जिक्र करेंगे उन नौजवानों का, उन एंटरप्रेन्योर्स का जिन्होंने पाकिस्तान में इजादात को फ़रोग़ दिया। ये बात बड़ी अचंभे की लगती है कि इस दौर में भी पाकिस्तान के अंदर इजादात हो रही हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद हो रही हैं जो वेस्ट को शर्मिंदा करती। हम इस हवाले से बहुत पीछे रह गए हैं और उसकी वजह ना सिर्फ हुकूमतों की नाकबत अंदेशी नाअहली है, बल्कि हमारे बिजनेसमैन ने भी कभी इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा माशी फ़ायदा बिजनेसमैन को होता है और अल्टीमेटली कौम उसको हार्वेस्ट करती है। अब देखिए, अगर 100 सनतकार पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 1000 तगड़े सनतकार हैं, 100 सनतकार अपनी कमाई का 1% R&D पे लगा दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पाकिस्तान 1 दहाई के अंदर गुलो गुलजार हो जाएगा। कभी ये सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क, एग्रेरियन का ही तस्करा होता रहता है। पाकिस्तान के अंदर जितना पोटेंशियल है, ये मैं ज़ाती तौर पे विज़िट कर करके इंक्यूबेशन सेंटर्स को देख चुका हूँ। ऐसे ऐसे शानदार इंक्यूबेशन सेंटर्स, ख़ास तौर पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, लम्स में, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे नौजवान बना रहे हैं कि हैरान कर दे। ना सिर्फ इजादात बल्कि बिजनेस के अंदर नई नई इख्तराएँ, नए नए आइडियाज़, क्योंकि असल चीज़ आइडिया होती है। जापानीज़ ने आइडियाज़ में बहुत इन्वेस्ट किया। वो कहते हैं आइडियाज़ दें, हम आइडियाज़ ख़रीदते हैं। वहाँ पे कंपनियाँ थीं एक ज़माने में, अब तो वो इतना कमा चुके हैं कि अब शायद उन्हें कमाने की ज़रूरत ही नहीं, कि आइडियाज़ फॉर सेल। इसराइल ने ये जो इतनी तरक्की की है, सिर्फ अमरीकी गोद में बैठने की वजह से की है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ डिफेंस के हवाले से इसराइल को सपोर्ट किया है, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया है, क्योंकि वो घिरा हुआ था बकौल उनके दुश्मनों के दरमियान, और उसकी हर बदमाशी को इंडेमनीफाई किया है। ये एक अलग बहस है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर उन लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया, आईटी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े वॉल्ट्स हैं इस वक्त, जिनसे हमारे अपने बैंक्स भी इस्तेफादा करते हैं, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में ये जो बड़े बड़े नाम हैं, विज आरटी हरफ आखिर समझा जाता है, ये हमारे न्यूज़ चैनल्स उससे इस्तेफादा करते हैं, वो इसराइल डेवलप करता है। आप मर्सिडीज़ को देखिए, हैरान कर देते हैं वो कि उनकी परसेंटेज ज़रा देखिए कि वो R&D पे कितना स्पेंड करते हैं। यूँ महसूस होता है कि वो खर्चा करते ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस किस मुल्क को दिया गया था? हमसायों। और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अगर आज का कश्मीर आप देखें, जिस तरह वो जल रहा है, उसकी चीखों पुकार रोज़ आप सुनाते हैं और सुनते हैं, तो क्या ये मुल्क इस काबिल था कि आप इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते? लेकिन देखिए ये हो गया। लेकिन जो लोग बेरोजगार हुए, अब देखिए कि अगर आपने जूता पाकिस्तान में बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो आप इंपोर्ट करेंगे उस पर 15% ड्यूटी देंगे। लेकिन अगर बना बनाया जूता जिसने वियतनाम या चाइना में लोगों को रोजगार दिया है, वो इंपोर्ट करेंगे तो सिर्फ 5% ड्यूटी देंगे। वाह वाह वाह। तमाम कंपनियों ने यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद की और बाहर से बना बनाया जूता इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जब से पाबंदी लगी है, लोकल कंपनियों ने पाकिस्तानी नौजवानों को हायर करना शुरू कर दिया है। इट विल टेक टाइम, लेकिन चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी। जिस तरह वो जिल्लत का सिलसिला जारी सारी था, उसको आके किसी हद तक कंट्रोल किया इमरान खान ने एक पॉलिसी के तहत कि इंपोर्ट पे उसने हैवी ड्यूटी। अब ड्यूटी ज़्यादा लगने से इंपोर्ट्स कम होगी, आपकी लोकल इंडस्ट्री ने सर उठाना शुरू किया। आपने गुज़श्ता बरस तकरीबन $6 अरब इस मद में बचाए हैं। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कदरे बेहतर हुआ। इस साल 13 की शुनीद है, तकरीबन 2.5 अरब हम ताहाल बचा चुके हैं। फिस्कल ईयर अभी काफ़ी सारा पड़ा है, हम 13 अरब सेव करते नज़र आते हैं। तो ये था इम्पीटस कि अगर लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करने से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस हद तक बढ़ सकती हैं
डॉलर की ये जो बदमाशी है उसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। चाइना ने भी देखे ना किस तरह, एक छोटी सी मिसाल ले लें आईफोन की। चाइना पर जब अमेरिका ने अरसा हयात तंग करने की कोशिश की, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आप पिछले दिनों सुनते चले आ रहे होंगे, उन्होंने एक ही काम किया, आईफोन का बाइकआउट कर दिया। अब इस बाइकआउट का शाखसाना देखिए कि 11वें नंबर पे हुआ करती थी आईफोन चाइना में, अब 24वें नंबर पे, और मजीद ख्वारी बर्दाश्त करेंगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स। आप अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें ना। अब उन्होंने हाल ही में वी चैट इंट्रोड्यूस किया था, 1 अरब से ज़्यादा उनकी सब्सक्रिप्शन है। सर R&D किस कदर ज़रूरी है, आप ये देखें कि हमारे मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं, पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ लोग साल का 23 अरब डॉलर कमाते हैं, जबकि हुआवे कंपनी जो है वो R&D पे सालाना 15 अरब डॉलर लगाती है। वाह। और इस कंपनी की सेल एक कंपनी की 100 अरब डॉलर से ज़ायद है। देखें ना, ये अपनी अपनी हुस्न तलब है, ये अपने एस्थेटिक्स हैं कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च करना चाहते हैं। मैंने पहले भी मिसाल दी है मर्सिडीज़ की। आखिर कोई वजह है कि मर्सिडीज़ आज भी मर्सिडीज़। सर हमारे यहाँ भी लोग इंफरादी सतह पर बहुत काम कर रहे हैं। एक खातून साइंटिस्ट ने आम की गुठली से शॉपिंग बैग बनाया है, हाँ, जो डिजोल्व हो जाता है। जी पानी में डिजोल्व हो जाता है। वाह। इससे किसी किस्म की आलूदगी नहीं होती। साढ़े ऐसे पागल उन्होंने विच पानी पा देना होता। मसनूई जिंद बनाएगी लाहौर में एक 100 गुना कम कीमत पे। एक फिल्टर बनाया नौजवान ने, एक ऐसा फिल्टर जिसे आप लगा के, फिल्टर वो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ जिसके अंदर फिल्टर है, आप गटर का पानी लें वो ड्रिंकेबल कर देता है, स्ट्रॉ के साथ पिए वो ड्रिंकेबल। क्या सर वेंटिलेटर बनाया एक बच्चे ने 30-35 हज़ार रुपए में। हालांकि आप किसी बड़े अस्पताल में चले जाएं, वहाँ वेंटिलेटर नहीं है। जी जी। उसके पैसे चार्ज करते हैं 10-15 हज़ार रुपए डेली। जी जी। 35,000 में एक कोई अच्छा बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, 1 अरब रुपए के सिर्फ वेंटिलेटर्स बनवा ले। और उसकी अहम बात यह है कि इस बच्चे ने सारा सामान हॉल रोड से इकट्ठा किया है। वाह। वो कहता है आप मुझे होलसेल पे दे दें, मैं इसको 20-25 हज़ार पे ले आऊंगा। और आपके सिर्फ सरकारी अस्पतालों में 1000 वेंटिलेटर की जरूरत है पंजाब में। फिर मरीजों के लिए जो व्हील चेयर होती है, जी जी, वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर बना दी है हमारे एक बच्चे ने। यार आपको याद नहीं, वो आरिफ वाले में जहाज उड़ा दिया था एक भाई साहब और वापस भी आ गए थे। हालांकि मैंने डिस्करेज किया था उसे, सख्त डिस्करेज किया, और मैं आज भी करूंगा। और वो कारीगर आदमी है, कोई वो इंजीनियर, एक मैकेनिक है, एक बेचारा वर्कशॉप मैकेनिक, लेकिन आप उसके ऊपर अगर 10-20 करोड़ इन्वेस्ट करें, वो पता नहीं आपको सेसना के लेवल की एक चीज बना के दे दे। पुलिस वाले ने फड़े और डर के उन्हें जहाज से सब्जी ला ली। नहीं, उसे बाद में छोड़ दिया गया था, लेकिन किया उसने काम गैर कानूनी था और बहुत खतरनाक था। अब हमें लगातार ब्लैकमेल का शिकार करती हैं ये बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां। जी, जब दिल चाहे कीमत बढ़ा देती हैं गाड़ी की, और इस कदर नास्टी, इस कदर थर्ड क्लास और इस कदर सबस्टैंडर्ड उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ये जी डॉलर महंगा हो गया, हम क्या करें। तुमने वादा किया था आने से पहले इन तीनों बड़ी कंपनियों ने कि हम स्पेयर पार्ट्स यहां डेवलप करेंगे, इंडिजिनसली मेड। उनके मुआहदों में लिखा हुआ, नहीं करते, नहीं, बाहर से सस्ता आसान जब चाहे मंगवा लेते हैं। जनाब इतना महंगा हो गया, ड्यूटी इतनी ज्यादा है। एक कंपनी ने गाड़ी की कीमत 5 लाख देखते ही देखते बढ़ा दी, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो बजाय ब्लैकमेल होने के, जिन भाई साहब ने जहाज बनाया उन्हें कहे हुजूर आप जहाज बाद में बना लीजिएगा, पहले कार बनाए, हम उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके साथ पूरी की पूरी एक फौज जफर मौज होगी यंग इंजीनियर्स की। और एक शख्स ने गाड़ी भी बनाई है 3-3.5 लाख रुपए में। वाह। और बाकायदा चलाता फिरता है वो। ये उनका मैंने भी दे दे गड्डी। इंजन वगैरह तो उसने लिया है। असल तो डेवलप करना है कि आप इंजन डेवलप करें। भाई आप JF-17 थंडर बना चुके हैं कि जी सर, स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसकी सारी ओवरहॉलिंग हो रही है। इन पैसों में आप देखिए आपने बनाया क्या हुआ है। वो तेजाज उन्होंने बंद कर दिए। हाँ जी। तो गाड़ियों में चाइना के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते आप। और आपका आम मैकेनिक जो है वो इंजन बना लेता है। ये कौन सी रॉकेट साइंस रही है आप? But Nusrat will take a break. Stay with us.